एक टर्म जेनेटिक्स हमने पढ़ा एंड वी कनेक्टेड मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट. यस और नो? सेकेंड टर्म इज बायोटेक्नोलॉजी. सेकेंड टर्म इज बायोटेक्नोलॉजी. देखो, बायोटेक्नोलॉजी is use of technology in biological molecules, or simply you can use it as biomolecules. Use of technology in primarily the genetic machinery. Primarily the genetic machinery. And genetic machinery is chromosomes, DNA, RNA, genes, nucleotides, base pairs and proteins. यही mechanism है. So in this entire machinery, if you do some kind of changes so that you develop certain products, you develop certain processes which are beneficial to mankind, which are beneficial to mankind. So biotechnology is basically that particular branch, which is dealing with the changes in the genetic machinery so that you can develop some products. For example, product ले, ये हमने example लिया GM crops. Heard of the terms? Genetically modified crops. Example, ये लो BT cotton. That's a product. And certain processes which are beneficial to, let's say processes stem cell therapy. Sickle cell anemia is a process. पानी पी ले बेटा. Stem cell therapy, gene therapy, ये लो CRISPR Cas9, सुना है? So all these processes we utilize it for any activity that is beneficial to mankind. So you develop some products, you develop some processes, you modify the genetic machinery, and ultimately we get is something which is beneficial for the mankind. That particular thing is biotechnology. But when we use the term biotechnology, पहली चीज दिमाग में आती है genetically modified crops. The first thing that comes into the mind is GM crops. Yes, GM crop is a significant application of biotech, but biotech is way beyond the idea of GM crops. GM crops के अलावा it's a very big domain, like GM crops, stem cell therapy, gene therapy, very important term, genetically engineered vaccines. Yes, सुना होगा नाम, genetically engineered vaccines. Then we go with the techniques like bioremediation. Bioremediation, it is basically remedy to pollutants using some biological derivatives. So bioremediation, and a lot of things are there. We utilize this for biofortification also. Biofortification means when you improve the nutrient content of the food items. When you improve the nutrient content of the food items, we call it as biofortification. We call it as biofortification. So all these things, they are connected with biotechnology. They are connected with, and based on these things, we can have 5 broad branches of biotech. कुछ नहीं लिखना अभी. 5 broad branches of biotech. These are basically based on applications, based on red biotech, green biotech, white biotech, yellow biotech, and blue biotech. Any idea about these terms? Somebody can help me? Somebody?
कलर्स हैं? अच्छा, अरे ये तुम्हें पता था कि गेस किया है? मैंने ब्रांचेस के बारे में पूछा है, कलर्स है। हाँ बोलिए। ब्लू डील्स विद मरीन, ओके, एंड व्हाट यू विल डू इन द मरीन एनवायरमेंट रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी? इतना नहीं पता सर, ओशंस के साथ ब्लू टर्म हमें पता है बस। रेड बायोटेक इज एप्लिक, हाँ बोलिए। रेड बायोटेक इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड मेडिसिन, वेरी गुड, एग्जाम्पल बेटा। वो लिखा हुआ है उसमें। और ग्रीन, ग्रीन इंसुलिन, शांति। अरे तुम, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है। रेड बायोटेक का एग्जाम्पल, हाँ यू आर सेइंग, तो इंसुलिन तो बिना बायोटेक भी बन रहा है। जीन थेरेपी, अभी तो लिखा था एग्जाम्पल, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन। जैसे कोविड में आपने सुना होगा कि mRNA बेस्ड वैक्सीन्स, mRNA बेस्ड वैक्सीन्स जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, फाइजर बायोनटेक या मॉडर्ना, यूएस बेस्ड थी, जो दोनों दोनों mRNA बेस्ड वैक्सीन्स थी। यस, सो एग्जाम्पल इज genetically engineered vaccines, genetically engineered insulin, stem cell therapy, gene therapy, etc., etc. Green biotech is applications of biotech in agriculture, GM crops, BT cotton and all. White biotech is industrial biotechnology. Is industrial biotechnology means when you take these productions to the commercial scale, to the commercial scale. So जब आप इसे commercial scale पे लेके चले जाते हो, that is what is industrial biotech. Any product that you take that to. Yellow is primarily insect biotechnology. Is primarily insect biotechnology. Like GM mosquitoes. GM mosquitoes. Mosquito is an insect. तो GM mosquito we are producing. Yes. Mosquito क्यों modify कर रहे हैं हम? Raise your hands. So that they cannot reproduce. तो उससे हमें क्या फायदा होगा? Basically, mosquito-borne infections are there. Yes. Like if I give you one example, this mosquito. सुना होगा नाम, Aedes aegypti. This mosquito is the reason for at least 5 viral infections in humans. 5 viral infection humans में इस mosquito की bite से होते हैं. So problem is not the virus. Problem is the agent which is transferring the virus. Problem is the agent transferring the virus. Yes. So उस एजेंट को ही ग्रो ना करने दें तो वायरस अपने आप एंट्री नहीं कर सकता बॉडी में. Yes. Whether it is the dengue or it is the chikungunya or it is the yellow fever. Yes. Or it is the Zika virus. It takes place, Chandipura virus, that all these viruses, they enter into human body through the bite of this mosquito. And it is always the female mosquito that bites. We know this thing. तो यूपीएससी ने एक ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया था कि हाउ मेल मस्किटोज दे सर्वाइव. इफ मेल मस्किटोज दे आर बाइटिंग ह्यूमंस, हाउ मेल मस्किटोज दे सर्वाइव? दे सर्वाइव ऑन द प्लांट प्रोडक्ट्स. दे सर्वाइव ऑन द प्लांट प्रोडक्ट्स. जैसे हनी भी नेक्टर वेक्टर यूज करती है, ऐसे ये भी कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स पे सर्वाइव कर रहे हैं. यस. So what we will do is we are using certain bacterial strains in genetic modifications that will not allow the growth of female larvae. जहां मस्किटो ब्रीडिंग हो रही है वहां पे जो लार्वा डेवलपमेंट है, मतलब एग से जो मस्किटो बन रहा है,
लार्वा तो इनिशियल स्टेज है, पता होगा. So there we use selective strains of bacteria which are not allowing the growth of female mosquitoes. Which are not allowing the growth of female mosquitoes. So if there are no female mosquitoes in that generation, there will not be next generation. Yes or no? भाई अगर कोई फीमेल मस्किटो इस जनरेशन में है ही नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन में वैसे ही कोई आ नहीं पाएगा. यस. सो ग्रेजुअली वी कैन वाइप आउट द पॉपुलेशन. तो इस तरीके का प्लान करके हम लोग किस में आ रहे हैं? येलो बायोटेक. यस. और इसमें जैसे एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, वोल्बैचिया. सो दिस वाज फेमस इन 18, 19, 20. मैं पढ़ाता था, ठीक है. पूछा ही नहीं यूपीएससी ने. जब पढ़ाना छोड़ दिया 23 में पूछ लिया वोल्बैचिया मेथड. मतलब बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए टर्म लिखने का. वोल्बैचिया इज अ बैक्टीरिया दैट वी यूज. वोल्बैचिया पूछा है यूपीएससी ने कि वोल्बैचिया का इस्तेमाल किस लिए है? नीचे था मस्किटोज को मॉडिफाई करने के लिए. यस. ब्लू बायोटेक इज marine biotechnology, like when you utilize, let's say, ocean algae, you modify this particular algae for generation of biofuels. आप इससे biofuels बना सकते हो. तो you are increase the growth of this. So this kind of biotech application will be blue biotechnology. It is the scientific discipline dealing with it is the scientific discipline dealing with it is the scientific discipline dealing with changes in the genetic machinery and biomolecules, changes in the genetic machinery and biomolecules to produce some products and processes certain products and processes beneficial to mankind. Beneficial to mankind. Like write 1, 2, 3, 4, 5. लिखो सामने से. लिखे तो हुए 1, 2, 3, 4, 5. GM crops, stem cell therapy, gene therapy, genetically engineered vaccines, bioremediation, biofortification. GM crops are one of the most significant outcome of biotech applications. GM crops. GM capital होना चाहिए जहां भी लिखोगे. GM crops are one of the most significant outcome of biotech applications. But biotech extends to significant domains including health and medicine, agriculture, oceans, energy, environment, industry, and so on.
And based on these applications, there can be 5 different branches of biotechnology. Broadly ये 5 होती हैं, बाकी लोगों ने 10-20 बना दी हैं. Broadly there can be 5 different branches of biotechnology. Five different branches of biotechnology. लिख लो भाई सामने से, कॉपी. Red, green, white, yellow, blue. So red में you can mention applications in pharmaceuticals and health sector. Applications in pharmaceuticals and health sector. Applications in pharmaceuticals and health sector. Pharmaceuticals and health sector. Like genetically engineered vaccines. IVF, in vitro fertilization. IVF, in vitro fertilization. सुना होगा. Stem cell therapy. Stem cell therapy. Gene therapy, etc. etc. दूसरा ग्रीन लिख लो. बीटी कॉटन, बी कैपिटल टी स्मॉल, बीटी कॉटन. बीटी ब्रिंजल, बी कैपिटल टी स्मॉल, बीटी ब्रिंजल. GM mustard, etc. White, generation of biofuels, biofertilizers, biopesticides, generation of biofuels, biofertilizers, biopesticides, yellow, insect biotechnology, like GM mosquitoes, Next कौन सा लिखा? Blue, less use of this term. 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 Primarily pertains to, primarily pertains to applications in marine environment. Primarily pertains to applications in marine environment. Applications in marine environment. Marine environment. Like seaweed farming. Biofuels. Oil zapping, etc. Oil zapping, ZAPPING. पढ़ेंगे अभी सारी चीजें. Oil zapping, ZAPPING. Oil zapping, etc. Done. अब जो इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके पास ये ड्यूटी है that to promote this particular branch in the country,
to enhance its academics involvement, research इसके अंदर बढ़ाना, ये सब किसकी ड्यूटी है? DBT, Department of Biotechnology. But once the products are out into the use, then allowing them for use, checking their negative impacts, or handling their storage, maybe allowing the export import of biotech derivatives, etc., etc. ये DBT की ड्यूटी नहीं है. This is the duty of another institution, another body. That is GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee. ये 3 बार पूछ लिया यूपीएससी ने, बताओ यार. Genetic Engineering Appraisal Committee. So basically it is a statutory body. Statutory मतलब पता ही होगा हमें, Act of Parliament से बना है जो. So it is a statutory body that has been created under Environment Protection Act 1986. किस एक्ट के अंडर बना ये? Environment Protection Act 1986. तो EPA 1986 के अंडर ये बना हुआ है. एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि GEAC किस एक्ट के थ्रू बना है, बेसिक से सवाल. देन दे रिपीटेड द क्वेश्चन कि GEAC वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तीसरी बार उन्हें याद आया ये तो पूछ लें कि GEAC करता क्या है. देन दे आस्क्ड द मैंडेट ऑफ GEAC. सो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरेज, यूज, फील्ड ट्रायल्स, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय GEAC. So first we mentioned is DBT, which is Ministry of Science and Tech, and this is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This is the national scenario. This is the national scenario. But you bring biotech derivatives from other countries also. Yes or no? देखो इतनी GM crops हैं, but one thing for your information, India has only allowed one GM crop for cultivation, BT cotton. We have not given permission to any other GM crop because still we are having the apprehensions that this can create problem to human health. This can create problem to biodiversity. This can be problematic to environment. So first we will be sure about this, it is not having negative impacts to significant level. Then only we'll allow that. Yes? तो ये responsibility GEAC की बनती है. This is the responsibility of GEAC. Correct? But when there is an international involvement, let's say BT cotton के seeds बनाए थे यूनाइटेड स्टेट्स ने. BT cotton एक Monsanto नाम की कंपनी थी जिसने यूएस में बनाए थे. अब तो ये किसी जर्मन कंपनी ने खरीद लिए, वो डिफरेंट चीज है. बट फ्रॉम यूएस व्हेन वी ब्रॉट दिस, तो हमें पता थोड़ी था नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएंगे. या टुडे इफ वी ब्रिंग समथिंग फ्रॉम अदर कंट्री, देन ऑल्सो वी कैन हैव द प्रॉब्लम. So at the international level, who will regulate this thing? United Nations Convention on Biological Diversity. United Nations Convention on Biological Diversity. Yes? UNCBD के अंदर बना. 1992 में एक अर्थ समिट ऑर्गेनाइज, ये डिटेल में एनवायरमेंट में पढ़ाऊंगा, यहां सिर्फ 2 मिनट का रेफरेंस दे रहा हूं. 1992 में there was an Earth Summit, yes, which was termed as Rio Summit, which was termed as because it took place at the Brazilian city of Rio de Janeiro. Brazilian city of Rio de Janeiro. Correct. That's why Rio Summit. Its official name was UNCED. YESA. Expand the term. UN में बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन. CED बताओ. दिस इज UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. एनवायरमेंट एंड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के. अब तो थोड़ा सा क्या है, यूपीएससी और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है चीजों को. अब तो वो बिना वजह की बटरफ्लाई भी उठा के लेके आ रहा है. यस. अदरवाइज UNFCCC और ये इसके साथ की जितनी भी चीजें हैं, दे वर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पोर्शन. शायद मैंने इंट्रोडक्टरी क्लासेस में बताया भी हो कि प्रीलिम्स इन द लास्ट 16 years, मैक्सिमम क्वेश्चंस
if UPSC has asked from one single topic, that is biotechnology. बताया था मैंने. दूसरा उसके बाद कोई टॉपिक है तो वो यही है, और इसके साथ कनेक्टेड इससे भी 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें कम से कम पेपर में, 40 क्वेश्चंस. तो एक साइंस टेक है, एक एनवायरमेंट है. यस. तो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप. ये पहली बार हुआ है 2026 में कि एनवायरमेंट के क्वेश्चन घटे हैं. इन द लास्ट 15 इयर्स वी नेवर सॉ दैट पर्टिकुलर ट्रेंड. इस बार 8 या 9 ही क्वेश्चन है. यस. और उसमें से आधे ही बन पा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो हैं ही इतने बेकार लेवल के, वो कोई उसका लॉजिक नहीं है भाई. आधे तो बन पा रहे हैं, आधे नहीं बनेंगे, आधे नहीं बन पा रहे. करेक्ट. अब तो बन जाएंगे, अब तो पेपर आ चुका ना, अब तो सारे बन जाएंगे. पेपर जब था हाथ में तब की बात कर रहा हूं. पूरे नहीं बन पा रहे भाई, और उसका कोई सोल्यूशन है भी नहीं. नो सोल्यूशन टू दैट. सो ओनली सोल्यूशन इज इफ दे गिव यू द सेम काइंड ऑफ पेपर, तो एंश्योर दोज आधे क्वेश्चंस, उतना एंश्योर कर लो बस. यस. क्योंकि आधे क्वेश्चन आधे लोगों से भी नहीं बने, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. ठीक है भाई, चलो कोई नहीं. तो 1992 अर्थ समिट, UNCED इसका नाम था. इट गेव राइज टू 3-4 थिंग्स, लाइक इट गेव राइज टू एजेंडा 21, पढ़ेंगे बाद में. इट गेव राइज टू रियो कन्वेंशंस. इट गेव राइज टू सर्टेन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. इट गेव राइज टू ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, GEF, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, GEF. सो ये जो रियो कन्वेंशंस आई यहां से, पहला आया UNFCCC, दूसरा आया UNCBD. UN, तो UNFCCC एंड UNCBD मर्ज हुए यहां से. इसी के प्रोविजंस में, एक्चुअल में इसका प्रोविजन था इसके अंडर. फिर ये तो 1992 की बात हो रही है ना, फिर 2 साल बाद UNCCD भी इसी में ऐड किया गया. सो UNFCCC इज UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD is UN Convention on Biological Diversity, and UNCCD is UN Convention to Combat Desertification. UN Convention to Combat Desertification. So ये जो देखो, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट में फिर ये दोबारा इतना बेसिक नहीं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं. फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मींस विच विल हैंडल द इश्यूज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड द एसोसिएटेड क्लाइमेट चेंज इवेंट्स. नाम से ही समझ में आ रहा है. Convention on Biological Diversity means which will focus on conservation, preservation and sustainable use of biodiversity. Genetic resources, natural resources, forest, ये सब है. भाई fish is a biodiversity or not? Plants are biodiversity or not? Yes or no? And you utilize both the resources for your personal gains. लेकिन उसको किस तरीके से properly इस्तेमाल करना है, that is what is under this. तो UNCBD. So this UNCBD, it led to emergence of some multiple outcomes. अब मैं UNCBD की बात कर रहा हूं, I'm not explaining further. UNCBD, it led to emergence of Cartagena Protocol on Biosafety. Cartagena Protocol on Biosafety. It led to emergence of Nagoya Protocol. चलो फिलहाल छोड़ दो. It led to emergence of HE targets. It led to emergence of Kunming-Montreal Biological Diversity Framework. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. और भी बहुत सी चीजें हैं, बट ये जो है कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, देखो लिखा हुआ है बायोसेफ्टी मीन्स सेफ्टी फ्रॉम बायोलॉजिकल बीइंग्स, सेफ्टी फ्रॉम बायोलॉजिकल. So Cartagena Protocol on Biosafety. Biosafety from living modified organisms, LMOs, और genetically modified organisms. Basically जो बायोटेक के डेरिवेटिव्स हैं. तो GM क्रॉप बायोटेक डेरिवेटिव है कि नहीं? Yes or no? So living modified organisms और genetically modified organisms, इनके नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, उसे रेगुलेट करना किसकी ड्यूटी है? कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी. तो इंटरनेशनल लेवल पे इट हैज टू बी कार्टाजीना प्रोटोकॉल. इट हैज टू बी कार्टाजीना प्रोटोकॉल.
let's say we are following every procedure with rules and regulations. कि भाई negative impact ना हो, we are ensuring that thing, everything we are maintaining. Still negative impacts takes place. Still negative impacts takes place. Then who will take the responsibility? Let's say US ने India को भेजे seeds and India started using them. And there is a negative impact on the native population, or there is a negative impact on the soil quality, or there is negative impact on the growth of other crops. तो कौन उसकी responsibility लेगा? ये कौन define करेगा? Who will define this thing? Regulation is through Cartagena. But even after regulation, if negative impacts takes place, तो compensate करना पड़ेगा कि नहीं? Who will decide that compensation? What should be the mechanisms? How the grievances should be redressed? उसके लिए कार्टाजीना का एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल बनाया गया. There is a supplementary protocol to Cartagena that we termed as Nagoya Kuala Lumpur सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ये नगोया अलग है, ये तुम्हें ट्रैप करेगा यूपीएससी. नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल इज नॉट सप्लीमेंट्री टू, इट इज सप्लीमेंट्री टू कार्टाजीना. यस, इट इज सप्लीमेंट्री टू. और ये जो क्वेश्चंस हैं एनवायरमेंट या साइंस के, इसको यूपीएससी प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना देता है. दे विल गिव यू कार्टाजीना, दे विल गिव यू नगोया, और लेट्स से दे विल गिव यू रियो. And they will simply ask you that the 3 cities which hosted these summits, arrange them in the world map from east to west. Like when we were preparing, so there was a free trade agreement between India and ASEAN countries. India and ASEAN countries related to some goods. So we were very much sure about this thing that there will be a question on Indo-ASEAN. Yeah, there will be a question on ASEAN countries. ASEAN पता है ना? Association for Southeast Asian Nations. ये सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सारा रीजन है जो. सो 100% इट वाज देयर कि देयर विल बी अ क्वेश्चन, देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन आसियान. तो सारा पढ़ लिया हमने, आसियान कैसे बना, विच आर द मेंबर्स एंड एवरीथिंग दे आस्क्ड. यस, एंड यूपीएससी ने कहा हम, तुम्हें पता है हम आसियान पूछेंगे. हम लोग बिल्कुल पता है सर, 100% पूछोगे, पूछ लो. उन्होंने कहा ये लो पूछ लिया. दे गेव 5 आसियान कंट्रीज एंड देयर कैपिटल. उन्हें कहा साउथ से नॉर्थ अरेंज करो मैप में इनको. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे भाई, सिंगापुर आपको पता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश पता है, उनकी कैपिटल उनके मैप में कहां है यार? ये कैसे अंदाजा लगाओगे? यस, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना. उसे साउथ से नॉर्थ अरेंज करना था वर्ल्ड मैप में. यस, सो वो क्वेश्चन पढ़ के वी मूव्ड फर्दर साउथ इन द पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, और क्या करें फिर? तो भाई वो करेंगे ऐसे काम. तो ये पूछे हुए हैं उन्होंने क्वेश्चन. तो कार्टाजीना कहां है? वेयर इज कार्टाजीना? हाँ जी, कार्टाजीना कहां है? कोलंबिया. नगोया इज जापान, और रियो तो ब्राजील है. यस, सो दे आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दे आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी. DBT. Under Ministry of Science and Technology. Under Ministry of Science and Technology. Department of Biotechnology, DBT. Under Ministry of Science and Technology. Under Ministry of Science and Technology. Is the apex body in the country, is the apex body in the country, apex body in the country, in the country, to enhance the research and development, to enhance the research and development, R&D, to enhance the research and development, promotion in academics, promotion in academics, infrastructure development, infrastructure development, infrastructure development.
infrastructure development. Collaboration with international bodies of the same nature. Collaboration with international bodies oblique governments. Collaboration with international bodies or governments of the same nature, working for the same, of the same nature लिख लो, एक ही बात है, of the same nature, and even with the private sector, and even with the private sector, and even with the private sector, even with the private sector. Even with the private sector. Change the sentence. Genetic Engineering Appraisal Committee, GEAC. Genetic Engineering Appraisal Committee, GEAC. Under Environment Ministry. Under Environment Ministry. Under Environment Ministry. Which is a statutory body established under EPA 1986. Which is a statutory body established under, which is a statutory body established under Environment Protection Act 1986, EPA 1986, established under EPA 1986, established under EPA 1986, established under EPA 1986. EPA 1986 is the apex body, is the apex body to regulate the biotech derivatives, is the apex body in the country to regulate the biotech derivatives, to regulate the biotech derivatives, to regulate the biotech derivatives, like export and import, storage, use, like export, import, storage, use, export, import, storage, use, field trials, field trials. अरे मतलब कोई क्रॉप बनी उसको पहले लैब में ही थोड़ी टेस्ट करोगे, उसे खेत में ले जाके उगा के देखोगे ना, तभी तो पता चलेगा नेगेटिव इंपैक्ट. फील्ड ट्रायल्स एटसेट्रा. For example, GEAC recently gave the permission. For example, GEAC recently gave the permission. Last 2-3 साल से चल रहा है ये चीज. GM mustard, yes. GEAC recently gave the permission for field trials of GM mustard seeds. Field trials of GM mustard seeds. इसका मतलब अभी फार्मर्स को नहीं दिए गए हैं वो सीड्स, सिर्फ ट्रायल के लिए हैं अभी. Field trials of GM mustard seeds. Field trials of GM mustard seeds. Correct. लेकिन हमारे यहां तो फील्ड ट्रायल से भी चोरी हो जाते हैं. यस नो. देखो, फील्ड ट्रायल का मतलब है पहले एक बार देख ले गवर्नमेंट की भाई सही है कि नहीं. यस. तभी तो उसको फार्मर्स को दिया जाएगा. यस. तो ऐसे ही बीटी ब्रिंजल के सीड्स दिए गए थे फील्ड ट्रायल के लिए. यस. वी गेव द सीड्स ऑफ बीटी ब्रिंजल फील्ड ट्रायल के लिए, वहीं से चोरी हो गए. एंड देयर वर केसेस ऑफ बीटी ब्रिंजल कल्टीवेशन इन 2 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. देयर वर केसेस ऑफ बीटी ब्रिंजल कल्टीवेशन. बीटी ब्रिंजल की कल्टीवेशन अलाउड नहीं है. सो सच थिंग व्हेन बायोलॉजिकल थिंग्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड और कल्टीवेटेड एंड यू आर यूजिंग देम, इसे बायोपायरेसी कहा जाता है. So that means we found the biopiracy events of BT brinjal in 2 different states of country.
Raise your hands with the names of the two states. Somebody saying Andhra. हाँ भाई, और किसी ने भी हाथ उठाया था? हरियाणा एंड कर्नाटका. Yes, one is North Haryana, one is South Haryana. So इन दोनों में we found these cases. Yes. Last point क्या लिखा? Change the sentence. The crops which are not allowed to be cultivated, the crops which are not allowed to be cultivated, which are not allowed to be cultivated, will be categorized under an event of biopiracy. Categorized under an event of biopiracy. An event of biopiracy. Biopiracy. Like biopiracy related to BT brinjal. Like biopiracy related to BT brinjal. Biopiracy related to BT brinjal. Biopiracy related to BT brinjal was found in states of Karnataka and Haryana. States of Karnataka and Haryana. Karnataka and Haryana. कर्नाटका एंड हरियाणा. ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो, बायोपायरेसी को आप रेगुलेट कर रहे हो, तो देयर मस्ट बी सम लेजिस्लेटिव बैकअप फॉर दैट. भाई, आपको कोई अरेस्ट करेगा तो उसके पीछे कोई ग्राउंड तो होना चाहिए. तो एक लेजिस्लेटिव बैकअप है बायोपायरेसी. सो बायोपायरेसी इंडिया में रेगुलेट किस प्रोविजन से हो रही है? ईपीए 1986. ट्रायल कौन से स्टेट में? ट्रायल तो पूरे इंडिया में होते हैं. ट्रायल एक स्टेट में थोड़ी होता है. इंडिया के हर स्टेट में लैब बना रखी है गवर्नमेंट ने. ये तुम्हारे पड़ोस में बनी हुई है यहां, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. इसमें अंदर कम से कम 50 वो हैं, खेत बना रखे हैं प्रॉपर. अरे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो एग्रीकल्चर रिसर्च तो खेत में ही होगी. तो ऐसे हर स्टेट में बने हुए हैं. यस. तो कौन से एक्ट के प्रोविजंस हैं जिससे बायोपायरेसी रेगुलेट होती है इंडिया में? It is under the provisions of Biological Diversity Act 2002. Biopiracy in India is regulated. Biopiracy in India is regulated under the provisions of Biological Diversity Act 2002. Under the provisions of Biological Diversity Act 2002. ठीक है. ठीक है जी. BDA 2002. क्या रिपीट कर दूं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. यार, ये कुछ लेजिस्लेशंस जो बहुत काम के हैं. चलो मैं तुम्हें एक लिस्ट बता देता हूं. जेनेटिक इंजीनियरिंग. अच्छा, लेजिस्लेशंस के नाम. इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927. तुम पूरा नाम लिखना. इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927. प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटीज टू एनिमल एक्ट 1960. प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटीज टू एनिमल्स एक्ट 1960. Cruelties to Animal Act 1960. Wildlife Protection Act 1972. Wildlife Protection Act 1972. Water Pollution Control Act 1974, which is famous as Water Act. Water Pollution Control Act 1974, famous with the name Water Act. Water Act.
जितने भी लिख रहा हूं सबसे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट विच इज फेमस विद द टर्म एयर एक्ट 1981। सबका बेसिक्स पढ़ाऊंगा मैं एनवायरमेंट में, और 2-3 तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और डायरेक्टली प्री में ना भी आए, मेंस में तो लिखोगे ही इनके रेफरेंसेस, नहीं तो कैसे नंबर आएंगे भाई। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये एक्ट नहीं एक पॉलिसी है ये, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। डन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, एनजीटी एक्ट 2010, एंड काम्पा 2016, काम्पा 2016। यसा, व्हाट्स द फुल फॉर्म? कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी 2016, ठीक है। टू 2016। इन सब के मैंडेट तो देखने ही पड़ेंगे भाई, लेकिन मैंडेट नॉट इन द सेंस कि पूरा लॉ समझना है आपके, उसका जो क्रक्स है एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहां गया? 1986। यस, इस एक्ट के प्रोविजंस में वी क्रिएटेड कोस्टल रेगुलेशन जोन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट वी क्रिएटेड सीआरजेड, कोस्टल रेगुलेशन जोन अंडर, आपने सुना होगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, these are produced under the provisions of एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कि व्हेन यू प्लान अ प्रोजेक्ट फर्स्ट यू एसेस की हाउ पॉजिटिवली और नेगेटिवली इट विल अफेक्ट द एनवायरमेंट। सो वो ईआईए आप इसके अंडर। फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर द लेजिस्लेशन, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की एक तो मैंने बताई आपको जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, दूसरा नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, लिखना नहीं है अभी बता रहा हूं, आपके क्वेश्चन का आंसर है एनसीजेडएम में। यस, तो जीईएसी पे क्वेश्चन आ चुका है। फिर यूपीएससी ने पूछा था सेंट्रल ग्राउंड वाटर्स अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर्स अथॉरिटी। यस, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर, और यूपीएससी की बदमाशी देखो, उन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पूछ लिया। अरे, बोर्ड इज नॉट द स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज द अथॉरिटी विच इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। पूछा हुआ है यूपीएससी ने, ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें पीवाईक्यूज में। एक कोशिश कर लो, कल जैसे छुट्टी है
तो ट्राई वन थिंग कि मार्क द क्वेश्चंस, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही बता देता हूं. लाइक यू हैव द PYQs विद यू, पिक अप 5-6 कलर्ड मार्कर्स. ये मैं हर क्लास में बताता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. पिक अप 5-6 कलर्ड मार्कर्स. तुमने कर रखे मार्क? ला बेटा दे PYQ, समझ में आ जाएगा बच्चों को. पास इट. बाकी सब्जेक्ट से करे. देखो, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कलर शी इज यूजिंग. तो एक कलर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए. लेट्स से ग्रीन कलर इज फॉर एनवायरमेंट. So 2011, question number 1 environment, question number 10 environment, question number 20 environment, highlight that with green color. So 2011 to 2026. So when you study environment, आपको साफ दिखे कि वो कलर, जैसे इसने अलग अलग कलर यूज किए हुए, ग्रीन है, ब्लू है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट अलग अलग हो गए ना. सो देन हाईलाइट वन विद अदर कलर विद साइंस एंड टेक. एक कलर आप हिस्ट्री के लिए ले लो, एक ज्योग्राफी के लिए. तो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे क्वेश्चन, और वो गाइड्स पे नहीं जाना यार. डू नॉट गो विद द गाइड्स. आप कहोगे सर ये तो फिल्टर्ड मिलता है मार्केट में, नहीं, वो मार्केट में ही रह जाएगा. फिर ये एफर्ट करो खुद से. वी नीड द ऑफिशियल पेपर्स, द अनसॉल्व्ड वंस. तो इससे दो फायदे हैं. एक तो PYQ साथ साथ होते जाएंगे. देखो नया बैच है, टाइम वेस्ट नहीं करना कि लास्ट में करेंगे, नहीं, साथ साथ करते जाओ. PYQs विद द सब्जेक्ट, लाइक पॉलिटी इज गोइंग ऑन, हिस्ट्री इज गोइंग ऑन, साइंस एंड टेक इज गोइंग ऑन. उनके PYQs मार्क कर लो. तो एक तो PYQ साथ में होंगे. दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज एक्चुअली द डिमांड ऑफ द एग्जाम और नॉट. ऐसे कहानियां सुनाने से क्या फायदा है? अरे जो चीज एग्जाम की है वो भी तो. यस, somebody is asking कि sometimes sir subjects they get overlap. तो कोई बात नहीं, उसमें से जो ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है, जैसे साइंस टेक एनवायरनमेंट के कई बार क्वेश्चंस ओवरलैप मिलेंगे, तो उसमें से जो मन करे वो हाईलाइट कर लो. एक करने तो सारे ही हैं. यस, सो प्लीज मार्क दीज क्वेश्चंस. जैसे ये इसने कर रखा है तो बहुत सही काम है ये. जैसे 2011 का पेपर है, जैसे इसने मार्क किया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन इसने ग्रीन से मार्क किया, मतलब ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन सेटेलाइट्स यूज्ड ब्लू से किया, मतलब साइंस टेक का क्वेश्चन हो गया. यस, तो अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर साइंस एंड टेक, और उसमें साथ साथ फिर देखो पहले मार्क करना है, फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप है consider the following: carbon dioxide, oxides of nitrogen, this. Which of the following emissions are the emissions from coal combustion in thermal power plants? Correct. तो इसके साइड में लिखेंगे पोल्यूशन. एनवायरमेंट में पोल्यूशन का क्वेश्चन है. साइंस टेक, सैटेलाइट्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी. तो इससे आपको स्पेस, लेट से आप सॉल्व पढ़ रहे हो और स्पेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 2011 से शुरू करेंगे. स्पेस के 4 बार स्पेस लिखा हुआ मिल गया, स्पेस के क्वेश्चन देखे. 12, 13, 14, 15, 16. इसको ईयर वाइज सॉल्व नहीं करना, सॉल्व इट सब्जेक्ट वाइज. सॉल्व इट विद सब्जेक्ट वाइज थिंग. जैसे आप लोग, कुछ लोग हो सकता है मंथली मैगजीन भी पढ़ते हो. सम ऑफ यू माइट बी रीडिंग, ये आगे चल के पढ़ोगे, मुझे पता है. पीपल दे हैव द फोमो इन द माइंड कि सर कुछ मिस हो रहा है. तो मैगजीन भी पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है. डू नॉट रीड इट मंथली बेसिस, रीड इट सब्जेक्ट वाइज बेसिस. जैसे अब साइंस टेक खत्म हो गया, तो लेट से तुम्हारे पास 6 मैगजीन है पिछली, 6 की 6 लेके बैठ जाओ सुबह. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सबका साइंस टेक निपटा दो एक साथ. तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इस सब्जेक्ट का तो स्टैटिक भी हो गया और करंट भी हो गया. एक सब्जेक्ट की साइकी क्रिएट हो जाएगी माइंड में. फिर उसके PYQs पे आ जाओ. यस, ये तीसरा स्टेप है. फिर तीनों चीजें रिवाइज कर लो. चौथा स्टेप हो गया MCQ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के. अब इसके बाद तुम कुछ कर भी नहीं सकते. इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? दिस इज व्हाट वी कैन डू. तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है. तो ऐसे थोड़ा सा अपने आप को ना, एक जनरली इस एग्जाम के लिए ये कहा जाता है कि इट रिक्वायर्स रफली 1.5 and 2 years बिफोर यू एक्चुअली क्वालिफाई. 2009 के रैंक 1 थे डॉक्टर शाह फैजल. एक वो टॉपर मिला आज तक जिसने ये कहा था कि आई ओनली प्रिपेयर्ड फॉर 8 months एंड ही गॉट रैंक 1. उनका इंटरव्यू सुनना आज तक किसी ने नहीं कहा, मैंने एक ही बार सुना है आज तक बस. उन्होंने कहा था कि मैंने 8 महीने तैयारी की बस इस एग्जाम की. यस, और उन्होंने कहा उसमें 1 महीना पहले इस एग्जाम को समझने में लगाया. आई इन्वेस्टेड 1 month टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम. यस, नॉट रीडिंग हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी. पहले मैंने ये समझा कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है. यस, एंड देन आई स्टडीड फॉर नेक्स्ट 6 months और क्वालिफाई होकर निकल गए. सो ये कर लो सब्जेक्ट वाइज, ये एफर्ट करो. जैसे अभी पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी के मार्क कर लो. हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री के मार्क कर लो. साइंस टेक चल रहा है, साइंस टेक के मार्क कर लो. ग्रेजुअली करते जाओ. एक दिन में तो एक्सरसाइज होगी नहीं.
अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो ये 1600 क्वेश्चंस हैं, 1600 क्वेश्चन है 2011 से 2026, 1600 क्वेश्चन। उस 1600 में से 250 एनवायरमेंट और 250 साइंस टेक, 500 तो ये हैं। यस। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पे क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने। इसी के अंदर एक बॉडी होती थी, गंगा वाली का क्या नाम था? अरे वो अब तो डिसॉल्व हो चुकी ना, इसलिए नहीं याद आ रहा नाम। हाँ, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसी के अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब इसको रिप्लेस कर दिया है किसने? नमामि गंगे तो स्कीम का नाम है यार, बॉडी नेशनल गंगा काउंसिल। कोई पता नहीं क्या हो रहा है यार, क्या कर रहे हो? नेशनल गंगा काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया इसको। यस, नेशनल गंगा काउंसिल। तो ये सब चीजें इन्हीं से समझ में आएंगी यार। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है इन 16 साल में, 10 क्वेश्चन आए हुए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। 10 बार क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 क्वेश्चन। तो एक एक्ट से 10 क्वेश्चन, मतलब वो रेलेवेंट ही है यार। यस। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए तो सुना होगा, प्रोजेक्ट टाइगर, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर डब्ल्यूपीए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर डब्ल्यूपीए। सेंट्रल जू अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर डब्ल्यूपीए। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर डब्ल्यूपीए। यस। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, एक तो सबने सुना होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। यूपीएससी ने कहा सीपीसीबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी? इफ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच लेजिस्लेशन? तो किस एक्ट के अंडर बनी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974। वाटर एक्ट के अंडर सीपीसीबी बना स्टैट्यूटरी बॉडी, वाटर एक्ट ऑफ 1970। पूछे हुए क्वेश्चंस हैं सारे जो मैं बता रहा हूं, यू विल फाइंड दीज रिवॉल्विंग। और ये जो मैंने टर्म्स लिखी थी यहां, ये जो लिखा था, ये सारी टर्म मिल जाएंगे पेपर में तुम्हें। एजेंडा 21 से लेके ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, रियो समिट, यूएनएफ ट्रिपल, पता नहीं कितनी बार पूछी हुई है। चलो एलिबरेट करेंगे ग्रेजुअली। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आ जाओ आप। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जीन्स में इंजीनियरिंग करना। यस और नो? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेसिकली इंजीनियरिंग इन द जीन्स। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो दिस डील्स विद जीन मॉडिफिकेशन। समबडी वाज आस्किंग यस्टरडे अबाउट जीन एडिटिंग, पूछा था शायद कल किसी ने, ये है जीन एडिटिंग। यस। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेसिकली मॉडिफिकेशंस इन द जीन्स, इज बेसिकली modifications in the genes, is basically engineering in the genes, or you can call it as editing in the genes. देखो हमने क्या कहा, genes they regulate the characters. So if you want to have some new character, you need a gene of that. Or if you want to suppress some unwanted character, उस जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करना पड़ेगा। आरएनए याद आ रहा है भाई? इफ यू वांट टू हैव अ कैरेक्टर, then you have to add up that gene. Like for example, इसको example से समझाता हूं। BT cotton, in BT cotton, BT is a bacteria, BT is a, इसका नाम है Bacillus, सेकंड नाम बोल नहीं रहा कोई, Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis, ये बैक्टीरिया है एक। So we picked up some genes, we picked up some genes। सर इंटरनेशनली कौन रेगुलेट करता है? वो नहीं लिखवाए। क्या नहीं लिखा हमने? कार्टाजीना नहीं लिखा? कहां तक लिखा है? जीईएसी लिख लिया, बायोपायरेसी लिख लिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। चलो सेपरेटली बिलो दी पहले लिख लो फिर भाई, राइट दैट, थैंक यू फॉर दैट। तो ऐसे बता दिया करो यार, कुछ मिस हो जाए तो। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी अंडर यूएनसीबीडी, अंडर यूएनसीबीडी।
Cartagena Protocol on Biosafety under UNCBD is an international mechanism to regulate the potential negative impacts to regulate the potential negative impacts to regulate the potential negative impacts due to the use of LMOs or GMOs. Due to the use of LMOs or GMOs. Due to the use of LMOs and GMOs. LMO is living modified organism. Living modified organism. Or GMO is genetically modified organism. LMOs and GMOs on human health, biodiversity and environment. On human health, biodiversity and environment. On human health, biodiversity and environment. And environment. And environment. ठीक है? Change the sentence. Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol. Nagoya Kuala Lumpur. भाई नगोया जापान है, कुआलालंपुर मलेशिया. नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल नहीं लिखा सामने. यार शहरों के नाम भी अब तुम नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा. कोल्हापुर लिख दो. तो कुआलालंपुर नहीं लिख रहे हो तो कुछ तो लिखोगे ही. नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल. Supplementary protocol is supplementary to Cartagena protocol. Is supplementary to Cartagena protocol. Is supplementary to Cartagena protocol. Supplementary to Cartagena protocol. Dealing with grievance redressal mechanisms. Dealing with grievance redressal mechanisms. Grievance redressal mechanisms. Grievance redressal mechanisms related to. Mechanisms related to. Mechanisms related to negative impacts taking place with use of LMOs and GMOs. Taking place with use of LMOs and GMOs. Taking place with the use of LMOs and GMOs. LMOs and GMOs. Difference between LMO GMO. अरे भाई, you modified some animal और उसके बाद वो जिंदा है. लेट्स से आपने ट्रांसजेनिक पिग बनाया तो वो लिविंग मॉडिफाइड, वो जिंदा है. बीटी कॉटन के सीड बनाए तो वो सीड पड़े हुए हैं, वो सीड थोड़ी लिविंग है. लिविंग तो उसका वो प्लांट होगा. तो एलएमओ इज अ नैरो टर्म जिसमें सिर्फ लिविंग कंडीशंस ऑफ द मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज देयर. और जीएमओ में उसका लिविंग एज वेल एज डॉर्मेंट स्टेज दोनों काउंट होंगे उसमें. वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है यार. करेक्ट. अब तो लिख लिया सारा. चलें जेनेटिक इंजीनियरिंग पे.
सो देखो, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के जीन्स डाले हमने. सो what happens in the nature that this bacteria bt, सुन लो, is not allowing the growth of certain insects. ये इनकी ग्रोथ को हैम्पर कर देता है. Insects like bollworms, insects like beetles. अब bollworms में सारे आ जाएंगे, whether it is the American bollworm or it is the pink bollworm or it is the spotted bollworm. ये सारे bollworms जो insects हैं, ये इनकी ग्रोथ को हैम्पर करता है. बट दीज इंसेक्ट्स जो हमने लिखे हैं, दीज इंपैक्ट द ग्रोथ ऑफ कॉटन. तो मतलब बॉलवॉर्म इज डेंजरस टू कॉटन एंड बीटी इज डेंजरस टू बॉलवॉर्म्स. नेचुरली हो रहा है ये सब. भाई नेचुरली क्रॉप्स को इंसेक्ट खराब करते हैं कि नहीं? तो कॉटन क्रॉप वाज डैमेज्ड बाय बॉलवॉर्म्स and naturally bacteria bt is not allowing the growth of bollworms. So if bt is attacking bollworms, it is a character of bt, must be regulated by some genes. So हमने क्या किया, bt के डीएनए में उन जीन्स का पता लगाया कि कौन सा जीन है which is regulating the character to attack the bollworms. That gene we picked up from bt and we introduced into cotton. So when that gene will be introduced into cotton, then cotton will produce a protein against that by DNA to RNA, RNA to, and that protein will not allow the growth of bollworms. यही तो चाहिए था आपको. Means biotechnology, when you are adding some genes to have a new character, to have a न्यू कैरेक्टर. तो यहां न्यू कैरेक्टर क्या आया? दैट कॉटन बिकेम पेस्ट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट. यस और नो? रेजिस्टेंट. किसके जीन्स उठा के डाल दिए? बीटी के. द बैक्टीरिया बीटी, द जीन्स दैट वी एडेड ओवर देयर. यस और नो? दूसरा, समटाइम्स you need not to add up the genes from outside. Sometimes some gene is having a deleterious impact. Means it is creating problem within the individual in which it is present. जैसे टोमेटो. टोमेटो remains fresh for 5-7 days. उसके बाद वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा. yes or no? कोई भी फ्रूट है यही होता है. So that softening character which is there is an inside impact. There is an enzyme within tomato which is leading to its softening of the outer covering. So if that softening is not taking place, bacteria, virus, fungus will not be entering into the fruit easily. So it will remain fresh for longer periods. तो 5-7 दिन की जगह 10-15 दिन ठीक रह जाएगा. भाई एनवायरमेंटल इंपैक्ट से खराब तो उसने होना ही है, बट 5 दिन की बजाय 15 दिन चले तो अच्छी बात है ना. Yes or no? So that softening character is inside thing. So that's a character must be controlled by some. तो हमने वो जीन्स का पता लगाया एंड वी ब्लॉक्ड द एक्सप्रेशन ऑफ दोज जीन्स. आरएनए इंटरफेरेंस और भी टेक्निक है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी भी होता है एक. सो बेसिकली वी ब्लॉक्ड द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन. सो नाउ द एंजाइम व्हिच वाज लीडिंग टू सॉफ्टनिंग विल नॉट गेट एनी ऑर्डर फ्रॉम इनसाइड. अब उसे ऑर्डर ही नहीं मिलेगा कि सॉफ्ट कर दो. यस और नो? सो दैट मीन्स द फ्रूट विल रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड. So outside you added the genes, inside you suppress the genes. But even if you added the gene or you suppress some native gene, दोनों ही cases में you modified the genes. So this is gene modification. दोनों cases में you edited the genes. This is gene editing. Gene editing. So we call it as genetic engineering. Yes. Genetic engineering is gene modifications or gene editing. Gene modification or gene editing. Gene modifications or gene editing. Gene editing, either to have new character. Gene editing, either to have new characters, or to suppress some unwanted ones.
or to suppress some unwanted ones. Suppress some unwanted ones. To suppress some unwanted ones. To suppress some unwanted ones. To suppress some unwanted ones. Underline either to have a new character. पहले यही लिखा था. Make an arrow below that. Pest resistance or insect resistance. For example, pest or insect resistance in BT cotton. Pest or insect resistance in BT cotton. In BT cotton. With addition of new genes. With addition of new genes. और बीटी कॉटन में मैंने बताया था बी कैपिटल रहेगा टी स्मॉल रहेगा हमेशा विद एडिशन ऑफ न्यू जीन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया बीटी. एडिशन ऑफ न्यू जीन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया बीटी. पूरा नाम लिखो एक बार. राइट द फुल नेम ऑफ द बैक्टीरिया. Bacillus thuringiensis. बीटी कॉटन कम से कम 5 बार पूछा हुआ यूपीएससी ने. बीटी के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई. Bacillus thuringiensis. दूसरा लिखा है टू सप्रेस सम. अंडरलाइन दैट. मेक एन एरो बिलो दैट. फॉर एग्जाम्पल suppressing the native genes of tomato. For example, suppressing the native genes of tomato. Suppressing the native genes of tomato. Native genes of tomato. To enhance its post-harvest life. To enhance its post-harvest life. और post-harvest life को क्या कहते हैं हम? Shelf life. Yes. Shelf life. Shelf. SH. Shelf life. Correct. अब जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आप करते हो, एडिटिंग इन द जीन्स करते हो, वी हैव मेथड्स फॉर दैट. जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स. मोस्ट कॉमन है RDNAT. फिर फेमस आजकल हो रखा है क्रिस्पर Cas9. यस और नो? RDNAT, recombinant DNA टेक्नोलॉजी. R स्मॉल T स्मॉल DNA कैपिटल. इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. आप पूरा लिख के फिर शॉर्ट में लिखना. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. RDNAT. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. लिखा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. सेकंड इज क्रिस्पर Cas9. क्रिस्पर कैपिटल, Cas9 का C कैपिटल. क्रिस्पर Cas9. क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड. क्लस्टर्ड regularly interspaced. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Short palindromic repeats. Palindrome यही होता है ना, 1 to 1 1 to 1 दोनों तरफ से. Palindrome यही तो होता है कि लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट सेम सेंस आए. शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. लिख लिया. RNAi is RNA interference. RNA interference.
AST is antisense technology. Antisense technology. Let's talk about the first one, recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. अब जो ये बायोटेक टॉपिक चल रहा है ये प्री मेंस दोनों का है. दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड जस्ट टू द प्रीलिम्स. Recombinant DNA technology. दो डीएनए बने हुए हैं सामने. Two different forms of DNA. One is belonging to BT and one is belonging to cotton. One is belonging to BT, one is belonging to cotton. Which one belongs to BT and which one belongs to cotton? This DNA belongs to BT and this DNA belongs to cotton. This is linear DNA and this is circular DNA. प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है एंड सारे यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है. यस, सो ऑल द प्रोकैरियोट्स दे हैव सर्कुलर डीएनए एंड यूकैरियोट्स दे हैव, तो कॉटन इज द यूकैरियोट ओनली. वही प्रोकैरियोट में तो एक ही था, मोनेरा. यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, सारे क्या थे? अरे भूल गए क्या वो शुरू वाली बातें? सो दे आर यूकैरियोटिक. So, what we do in recombinant DNA technology, we know that some genetic sequence of bacteria BT, let's say this segment of bacterial genes, this is the segment which is regulating the character, कौन सा कैरेक्टर? अटैक ऑन बॉलवॉर्म्स. इंसेक्ट्स को जो अटैक करता है वो कैरेक्टर है ना, सो मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय सम. यार जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों पढ़ा था? कहानी था होस्ट पैथोजन केमिस्ट्री. सो दिस विल रेगुलेट द अटैक ऑफ बैक्टीरिया ऑन बॉलवॉर्म्स और इंसेक्ट्स. सो वी वांट दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए इन दिस डीएनए. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में व्हाट वी डू, फर्स्ट स्टेप में वी विल कट दिस डीएनए. यू विल कट दिस रिक्वायर्ड सेगमेंट. तो मतलब एक्स एक्स डैश जो सेगमेंट है इसको कट कर दिया आपने. यू जस्ट कट दैट. यस. सेकंड में दिस हैज टू बी अटैच्ड विद सम वेक्टर और व्हीकल और कैरियर डीएनए. 2026 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. यस और नो? अरे कल ही तो पढ़ा था हमने. और 26 नहीं है, 23 का भी क्वेश्चन है ये. दिस इज अ क्वेश्चन इन 23 ऑल्सो. देखो यूपीएससी क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बस तुम्हें परेशान कर रहा है वो. दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 26 कि वायरस एंड नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर द कट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. करेक्ट? यही क्वेश्चन था. एंड in the 23 or 22nd 22 wala question, they asked a question that which among the following can be used as a vector in creation of genetically engineered vaccines. बस उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टर्म है उसे स्पेसिफाई कर दिया, वी आर यूजिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन्स. तो वेक्टर्स विल रिमेन सेम. भाई चाहे आप नॉर्मल टर्म इस्तेमाल कर लो जेनेटिक इंजीनियरिंग, और यू यूज द टर्म फर्दर एप्लीकेशन. अब मैं, उन्होंने वैक्सीन पूछा, लेट्स से मैं फ्रेम कर देता हूं कि विच अमंग द फॉलोइंग वेक्टर कैन बी यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ जीएम क्रॉप्स. तो वेक्टर तो सेम ही रहने हैं. और उसमें ऑप्शंस थे बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस. यस, वो चलो जो भी है मैं बताऊंगा अभी, बट क्वेश्चन तो सेम है. दे जस्ट फ्रेम्ड इट डिफरेंटली. तो वो पूछेंगे वही चीज इन अ डिफरेंट वे. So we need
अब वेक्टर और व्हीकल और कैरियर डीएनए टू ट्रांसफर दिस कट सेगमेंट, टू ट्रांसफर दिस कट सेगमेंट अभी बात करेंगे. एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर, most commonly used vector is plasmid. This is bacterial cell. This is the prokaryotic nucleus. It has DNA. Yes or no? But other than this nucleus, there is a DNA outside of the nucleus also. So this DNA is associated with chromosomes. अरे कहा ना DNA coil करके क्या बनाता है? But this DNA is not forming the chromosomes. So this is termed as chromosomal DNA because this is getting condensed to form, and this is extra chromosomal DNA. Extra to the chromosomal DNA भी DNA होता है सेल में बैक्टीरिया की, and that extra chromosomal DNA is termed as plasmid. So plasmid is the extra chromosomal DNA present in bacterial cell. Is the extra chromosomal DNA present in the bacterial cell? Yes, correct. So ये जो extra chromosomal DNA, अब है तो DNA ये, it must be circular. So देखो ये chromosomal DNA बनाया मैंने, जिसमें से हमें कौन सा सेगमेंट पिक करना है? XX डैश. बट एक किसी और बैक्टीरिया का हमने प्लाज्मिड ले लिया, ये प्लाज्मिड डीएनए हो गया. सो दिस XX डैश we will attach with this DNA. Will attach with this DNA. ध्यान से समझो इस चीज को. This plasmid DNA, अब प्लाज्मिड किसके अंदर प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. बट देखो ये बीटी बैक्टीरिया एक अलग केस है. ओवरऑल जनरल टर्म है प्लाज्मिड, तो हर बैक्टीरिया के साथ होगा, लेकिन हमें किस बैक्टीरिया के जीन्स चाहिए? लेट्स से टू चेंज माय केस, ये जीन्स ये बैक्टीरिया नहीं है, लेट्स से ये कोई और ऑर्गेनिज्म है जिसके जीन्स हमें चाहिए. द जीन्स दैट वी वांट इज लेट्स से सम डिफरेंट. यस, सो फॉर दैट आल्सो यू नीड अ प्लाज्मिड डीएनए एज अ वेक्टर, एज अ कैरियर. मतलब डीएनए है भाई, इसको ऐसे हाथ में थोड़ी ले जाओगे. You will have to attach it with some DNA segment to carry that. So you will attach this XX dash segment with plasmid DNA. Now this plasmid DNA is having two types of DNA. पहला तो जो होस्ट बैक्टीरिया था उसका, और दूसरा कौन से बैक्टीरिया के जीन्स हैं? बीटी के. हमारे केस में बीटी का चल रहा है. So now two genes are there. Correct? And this plasmid is extra chromosomal DNA of some bacteria. हमने उस बैक्टीरिया की सेल में इस प्लाज्मिड को वापस डाल दिया. सो यू रिकंबाइंड दैट प्लाज्मिड विद द बैक्टीरियल सेल. नाम समझ आया? यू रिकंबाइंड दैट प्लाज्मिड विद द बैक्टीरियल सेल. दोबारा आओ इधर, बहुत टेक्निकल है भाई, कुछ नहीं कर सकते, समझो. यू नीड XX डैश सेगमेंट ऑफ बीटी, करेक्ट और नॉट? आपने इसको कट कर दिया. You just cut that segment. And इस कट सेगमेंट को कॉटन तक ले जाने के लिए कुछ स्टेप्स क्रॉस करने पड़ेंगे. जैसे पहला स्टेप है, it has to be attached with some other DNA. It has to be attached with some. That other DNA will act as a vector DNA और vehicle DNA और carrier DNA. और carrier DNA में most common कौन सा है? Plasmid DNA. Plasmid DNA which is the extra chromosomal DNA in bacterial cell. Yes. तो हमने वो प्लाज्मिड डीएनए किसी बैक्टीरिया से निकाल लिया. चलो मैं नाम ही बता देता हूं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा. थोड़ा सबसे कॉमनली हम इस बैक्टीरिया से निकालते हैं वो प्लाज्मिड डीएनए, एग्रोबैक्टीरियम. व्हाट्स द नेम? अब एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड निकाला, उसके प्लाज्मिड के साथ XX डैश किसका है जो अटैच कर दिया? बीटी का. सो नाउ दिस प्लाज्मिड हैज entire segment of which bacteria with XX dash segment of. हो गया. अब इस प्लाज्मिड को, जिसमें दो डीएनए हैं, ओरिजिनल डीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम प्लस न्यू डीएनए ऑफ, इसको वापस कौन किसकी सेल में डाल दिया? यू रिकंबाइंड दैट प्लाज्मिड. तो रिकॉम्बिनेंट टर्म का यहां से आया. अब हमने रिकंबाइन क्यों किया? हमें तो कॉटन में ट्रांसफर करना था. ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि व्हाई वी रिकंबाइंड दैट. बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डीएनए. बैक्टीरिया की सेल हमसे कम डीएनए रखती है, छोटी सेल है हमसे.
यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में, प्लांट्स एनिमल्स के कंपैरिजन में. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट डीएनए, और मल्टीप्लाई तो सेल के अंदर ही जाके होगा भाई. सो यू विल मल्टीप्लाई दैट डीएनए कंटेंट बिफोर यू एक्चुअली ट्रांसफर दैट इनटू द कॉटन. इस चीज को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए कंटेंट. दिस इज टर्म्ड एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए. देखो स्टेप्स एक्चुअली बहुत अलग अलग हैं, बट मैंने जनरल समझा दिया जो हमारे काम का है. दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए. सीधा मतलब हुआ, अगर एक्स एक्स डैश की 10 कॉपीज थी, उसे 10,000 बनाना है. एंड देन वी विल ट्रांसफर दिस एक्स एक्स डैश एक्चुअली इनटू द डीएनए ऑफ, अटैच तो यहां करना है ना वो अल्टीमेटली, तो लाके विद द डीएनए ऑफ कॉटन, विद द डीएनए ऑफ कॉटन. दिस इज द थीम बिहाइंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. दिस इज द थीम बिहाइंड. लेकिन अब देखो इसमें बहुत सी चीजें ऐड होंगी. सबसे पहली, आपने एक्स एक्स डैश को कट किया, you cut that segment. So for cutting of that segment, you need specialized scissors. You need specialized scissors. We call them as molecular scissors. क्योंकि उसने डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कट करना है ना. अरे सही बात है कि नहीं? It has to cut the molecules of DNA. Molecular scissors. And these molecular scissors are most commonly enzymes. These are enzymes. Most commonly used scissor is restriction enzymes. What's the name of the enzyme? It can be restriction exonucleases, or it can be restriction endonucleases. रट्टा मारना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इस चीज का. एंजाइम्स के नाम समझ थोड़ी सकते हो. सेकंड, एक एंजाइम जो इस्तेमाल होता है, एक और वन. थर्ड, ZFN, जिंक फिंगर न्यूक्लियेसेस. फोर्थ, टेलेंस, S just to make it plural. टेलेंस. टेलेंस क्या होते हैं भाई? हाँ, इतना ही देख पाए, पूरा बता बेटे. ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियेसेस. देखो फुल फॉर्म इज नॉट दैट मच रेलेवेंट, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा. बट मुझे प्रॉब्लम यह है, उन्होंने सिर्फ फुल फॉर्म दे दी क्वेश्चन में, तो टेलेंस लिखा ही नहीं उन्होंने, फिर क्या करोगे? यह प्रॉब्लम हो जाती है. क्रिस्पर की फुल फॉर्म वो कभी नहीं पूछेगा. यस, कभी नहीं पूछेगा. बट क्रिस्पर का सिर्फ फुल फॉर्म यूज कर लिया, फिर क्या करेंगे? तो ये पता ही नहीं चलेगा ये क्रिस्पर है, आते हुए भी गलत करके आएंगे क्वेश्चन फिर. तो इसलिए भाई फुल फॉर्म जानना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज वो कभी नहीं पूछेंगे तुमसे टेलेंस की फुल फॉर्म क्या है. यस, और ये इतिहास रहा है, जो मैंने कहा ना कभी नहीं पूछेंगे, वो पक्का आया है. ये होता है, बहुत बार होता है. यस, सो दीज आर सम मॉलिक्यूलर सिजर्स दैट वी यूज. अब एक मॉलिक्यूलर सिजर जो नया आजकल ऐड हो गया है, क्रिस्पर Cas9 में Cas9 क्या है? इट्स अ मॉलिक्यूलर सिजर ओनली. इट्स अ मॉलिक्यूलर सिजर ओनली. यस, तो हमें कट करने के लिए एंजाइम चाहिए. अभी कुछ नहीं लिखना है, समझते जाओ. कट कर दिया. अब कट के बाद आपने अटैच भी तो किया यहां, इसके साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो यू नीड एन एंजाइम टू लाइगेट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेजेस. लाइगेजेस मींस, लाइगेशन मींस अटैचमेंट. तो डीएनए लाइगेज ने अटैच करवा दिया. एंड यू नीड टू अटैच ओवर हियर ऑल्सो. तो डीएनए लाइगेजेस यहां भी काम आ जाएगा. और यहां भी तो आपको मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, बिकॉज दिस डीएनए वाज क्लोज्ड. आपको उसको कट करके तभी तो अटैच करोगे. तो यू नीड एंजाइम्स फर्दर. ठीक है. तीसरा हमने कहा कि यू नीड टू एम्पलीफाई द कंटेंट ऑफ डीएनए. इस एम्पलीफाई कैसे होगा? थ्रू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. थ्रू replication of DNA. And the most important enzyme required for replication of DNA is DNA polymerase. So third enzyme is, पहला एंजाइम थे आपके रेस्ट्रिक्शन कटिंग वाले एंजाइम्स, अटैचमेंट वाले तीसरा
मल्टीप्लीकेशन वाले, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई कर दिया, कॉटन में ट्रांसफर कर दो। यस, नाउ भाई ऐसा थोड़ी है कि कॉटन विल एक्सेप्ट दैट सो इजीली। ये बहुत समझने की चीज। अब देखो, what is the purpose of what we are doing? Purpose is that cotton will start producing the protein which is there with the gene XX dash. Like genes, they control the characters through certain proteins. So that protein will kill the bacteria. टॉक्सिन होता है बेसिकली। तो वो टॉक्सिन प्रोटीन जब तक बनेगा नहीं कॉटन में, इतने तो हमारा पर्पस ही वेस्ट है जो कर रहे हैं हम लोग। यस, सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विल ओनली शो द इंपैक्ट इफ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन विल एक्सेप्ट द इनकमिंग डीएनए। भाई कॉटन के लिए तो वो एलियन डीएनए है ना, फॉरेन डीएनए है, उसका अपना डीएनए थोड़ी है। तो कॉटन क्यों एक्सेप्ट करेगा? आप सिंपल लॉजिक समझो ना। आप बाहर जाते हो, एकदम से आपने देखा आंधी आ रही है, डस्ट उड़ रही है, तो डस्ट जैसे ही नाक में जाती है स्नीज करना शुरू कर देते हो। आपकी बॉडी क्यों एक्सेप्ट करेगी बाहर का पार्टिकल? जैसे ही रेस्पिरेटरी पैसेज में पार्टिकल गया, यू स्नीज आउट दैट पार्टिकल आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती भाई। तो कॉटन के पास तो डीएनए आ रहा है दूसरा, हाउ कॉटन विल एक्सेप्ट दैट? कॉटन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस, सो वी हैव टू गेट इट एक्सेप्टेड, करेक्ट। तो कॉटन को एक्सेप्ट कराने के लिए, देखो ये कॉटन का डीएनए है एंड कॉटन मल्टीप्लाइज इट्स डीएनए। कॉटन के अंदर भी तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। कॉटन इज रेप्लिकेटिंग इट्स डीएनए और नॉट? कॉटन इज मल्टीप्लाइंग इट्स डीएनए और नॉट? एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो there should be some place. Why I did not mention at the, why I did not mark at the first place? मैंने बीच में क्यों मार्क किया? Because in a DNA, replication is not necessarily starting at point number 1. Let's say इसमें 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So every species will have different points where replication is getting started, and that point is termed as ORI, origin of replication. ORI capital, origin of. So to get that particular DNA accepted, आपको वो XX dash कहां अटैच करना पड़ेगा? ORI पे, origin of replication. But this is also not the success. You attach this with ORI, but we will only find it successful when cotton will consider this as its own. And how you will get to know it has considered it as its own? When cotton will start multiplying this DNA. भाई एक बार तो आपने सीड बना के दे दिए, इसके बाद प्लांट ग्रो करेगा, तो प्लांट खुद मल्टीप्लाई करेगा डीएनए, तभी तो ग्रोथ होगी। सो कॉटन विल एक्सेप्ट द इनकमिंग डीएनए when it is attached to ORI. Cotton will start multiplying that incoming DNA. यहां भी बात नहीं बनी। बात कब बनेगी? When the DNA or genes that are incoming will start expressing the character controlled by that. मतलब when cotton will accept this DNA, will attach it with its ORI, will start multiplying this DNA, and finally produce the protein toxin. Finally produce the protein toxin based on that DNA. वो टॉक्सिन ही तो मारेगा जाके किसको? बॉलवॉर्म्स को। चलो नाम बता देता हूं आगे। इस टॉक्सिन को हम कहते हैं थ्यूरियोसाइड। वी कॉल इट एज। सो बेसिकली जब तक कॉटन में थ्यूरियोसाइड नहीं बन रहा, इतने तो सारा पर्पस वेस्ट है हमारा। यस और नो? सो जब कॉटन ने सारा काम करके थ्यूरियोसाइड बना लिया, देन यू कैन से दैट दिस बायोटेक प्रोडक्ट इज सक्सेस। यस, दिस थ्यूरियोसाइड विल एक्चुअली किल द बॉलवॉर्म्स, इट विल न्यूट्रलाइज द बॉलवॉर्म्स, करेक्ट और नॉट? तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा बॉलवॉर्म्स को। सो कॉटन में नया डीएनए ऐड हो गया, कॉटन हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट्स डीएनए। ये पूरा प्रोसेस हुआ, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कि कॉटन का डीएनए ट्रांसफॉर्म हो चुका है अब। तो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट व्हेन cotton will accept the incoming DNA, will attach it with its ORI, will start multiplying it considering as its own, and will produce the protein toxin controlled by that. So अब bollworm will be neutralized. ये प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैंने बीटी कॉटन के साथ ही बता दिया ताकि बीटी कॉटन भी समझ आ जाए। हमें लैब में करके थोड़ी दिखाना है यूपीएससी को। गॉट द पॉइंट और नॉट? एंजाइम्स के नाम पढ़ो दोबारा।
Restriction enzymes, exonucleases and endonucleases. एक और वन, ZFN, टेलेंस, Cas9, यस। चलो एक बार लिखते हैं, फिर जो नहीं समझ आए बताना। प्लीज राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, most commonly used method of genetic engineering, where the desired segment of DNA, where the desired segment of DNA, where the desired segment of DNA is removed from the host species, is removed from the host cell, ऐसे लिख लो, is removed from the host cell and is attached with the destination genome, and is attached with the destination genome, and is attached with the destination genome, attached with the destination genome. For example, cutting of genes from bacteria Bt. For example, cutting of genes from bacteria Bt. Cutting of genes from bacteria Bt. And attachment with cotton DNA. And attachment with cotton DNA. Attachment with cotton DNA. ठीक बात है कि नहीं? चेंज द सेंटेंस, ये पहले बनाओ एक बार, ये दोनों बना लो, सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए प्लीज मेंशन. प्रोकैरियोट्स हैव सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोट्स हैव सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोट्स हैव सर्कुलर डीएनए एंड यूकैरियोट्स हैव लीनियर डीएनए. यूकैरियोट्स हैव लीनियर. आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, आ जाओ अंदर, या आ जाओ, कोई बात नहीं, पुराने लोग हैं. Eukaryotes have linear DNA. Eukaryotes, they have linear DNA. Correct. प्रोकैरियोट के साइड में लिख दो एग्जाम्पल बीटी बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स में लिख दो लाइक कॉटन, लाइक कॉटन. चेंज द सेंटेंस प्लीज. फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिएशन ऑफ बीटी कॉटन, फॉर एग्जाम्पल, in creation of BT cotton, in creation of BT cotton, in creation of BT cotton, the required segments from bacteria BT, the required segments from bacteria BT, bacteria BT, bacteria BT are cut using specialized molecular scissors, are cut using specialized molecular scissors, specialized molecular scissors. पांचों लिख लो भाई, 1 2, which are enzymes, which are primarily the enzymes, which are primarily the enzymes. Write the names please, all the 5. Restriction enzymes which can be exonucleases as well as endonucleases. Then एक और zinc finger, transcription activator, Cas9, सब लिख लो. So पहला point. Second point, if after that please mention the cut segments of DNA, the cut segments of DNA are attached with the cut segments of DNA are attached, यहां पे आ जाओ, with a vector or vehicle or carrier DNA, attached with a vector or vehicle or carrier DNA, attached with a vector or vehicle or carrier DNA, or carrier DNA. For example, the extra chromosomal DNA in bacterial cell, plasmid,
For example, plasmid. For example, plasmid. Plasmid, the extra chromosomal DNA. Extra chromosomal DNA in bacterial cell. Plasmid कहते हैं उसको. ठीक है. चेंज द सेंटेंस. देखो ये वाला. Most commonly used plasmid in plant biotech applications. Most commonly used plasmid in plant biotech applications. Most commonly used plasmid in plant biotech applications is agrobacterium. Is from which bacteria? Agrobacterium. In plant biotech applications I'm talking about. In plant biotech applications. Correct? अब यहीं पे देखो, ये तो प्लांट बायोटेक में. अगर एनिमल बायोटेक है, जैसे वैक्सीन्स बनानी है, तो उसमें प्लाज्मिड सबसे कॉमनली किस बैक्टीरिया से लेते हैं? इन एनिमल बायोटेक एप्लीकेशंस द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड इज ई कोलाई. इन एनिमल बायोटेक एप्लीकेशंस. इतना धीरे लिखेगी तो बेटा पेपर कैसे पूरा होगा? इन एनिमल बायोटेक एप्लीकेशंस the most commonly used plasmid is E. coli. Done? लिखा भाई? Next point. Plasmid carrying the desired DNA segments. Plasmid carrying the desired DNA segment. Plasmid carrying the desired DNA segment. Desired DNA segment. Carrying the desired DNA segment is recombined back to the host bacteria. Is recombined with the host bacteria. Recombined with the host bacteria. Host bacteria. For amplification of the DNA content. For amplification of DNA content. Amplification, multiplication. For amplification of DNA content. DNA content. ठीक है जी. अब हमने अटैचमेंट वाली बात कर दी, तो अब यहां दो एंजाइम आ गए अटैचमेंट के लिए, लाइगेज और मल्टीप्लिकेशन के लिए. इसी पॉइंट में लिखो डीएनए लाइगेजेस. डीएनए लाइगेजेस आर यूज्ड टू लाइगेट और अटैच द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. डीएनए लाइगेजेस, लाइगेट करना, किसी चीज को अटैच करना. डीएनए लाइगेजेस आर यूज्ड टू अटैच द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. इसी में लिख लो डीएनए पॉलीमरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम. डीएनए पॉलीमरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम required for most important enzyme required for DNA replication and amplification. Required for DNA replication and amplification. And amplification. ठीक है जी. Correct or not? Next point. The amplified content of DNA, the amplified content of DNA is ligated. नाम से ही समझ जाओगे यहां कौन सा एंजाइम यूज होगा. The amplified content of DNA is ligated. इधर आओ. With the ORI, ORI capital. With the ORI, origin of replication कहते हैं इसको. Is ligated with the origin of replication or I of the host DNA. Of the host DNA. Oblique desired genome.
अरे जहां पे आपको अटैच करना है डिजायर्ड जीनोम, like bt genes into the cotton, like bt genes into cotton. Last step, subheading transformation. Last step आ गया ट्रांसफॉर्मेशन. Transformation. When the host cell accepts the incoming DNA, when the host cell accepts the incoming DNA, accepts the incoming DNA, comma, attaches it with its ori, attaches it with its ori, attaches it with its ori, multiplies it considering as its own, multiplies it considering as its own, multiplies it considering as its own, considering as its own, and finally expresses the character controlled by that, and finally expresses the character controlled by the incoming DNA, expresses the character controlled by the incoming DNA. For example, BT genes in cotton DNA, BT genes in cotton DNA will start producing the protein toxin. BT genes in cotton DNA will start producing the cotton toxin. Oh, sorry, protein toxin. Start producing the protein toxin. क्या नाम बताया था हमने? थ्यूरियोसाइड लिखा होगा कहीं, ये रहा थ्यूरियोसाइड. That is थ्यूरियोसाइड. That is thurioside, which will neutralize the insects like bollworms. Thurioside, which will neutralize the insects like bollworms, which will neutralize the insects like bollworms. ठीक है, तो आपने एक सेल में इंजेक्ट कर दिया, सेल्स को आप मल्टीप्लाई कर लेते हो लैब में, रोज सारी इंट्रोड्यूस कर देते हो होस्ट सेल, होस्ट जीनोम में, फिर वो मल्टीप्लाई होते होते कंटेंट बढ़ता जाएगा उसका सेल का. करेक्ट. एक बार रुक जाओ भाई, हमने प्लाज्मिड यूज कर लिया, उसके अलावा देखो जो वेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, पहला तो हमने लिखा प्लाज्मिड विच इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, यस और नो. दूसरा वेक्टर जो इस्तेमाल होता है वो है बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस क्या है? वायरस विच कैन इन्फेक्ट. भाई इनके अंदर भी इधर डीएनए और आरएनए है, तो उनके डीएनए को यूज कर लिया आपने. फिर एक होता है बीएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, एक होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. अब देखो ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये फंगस हो गया यीस्ट. इसका मतलब है ऑल द थ्री बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस कैन बी यूज्ड एज वेक्टर्स इन बायोटेक एप्लीकेशंस. करेक्ट है कि नहीं? अब ये तो वेक्टर हो गए, हमारे पास वेक्टरलेस ट्रांसफर भी है. अब क्या है ना, एडवांस मेथड्स आ गए हैं, जैसे जीन गन. जीन गन में क्या करता है, गन के जैसा जैसे बुलेट अटैच होती है, ऐसे जीन्स अटैच करके शॉट किया जाता है सीधा सेल में. यस, मैकेनिकल प्रोसेस है. जीन गन आ गया एक. फिर केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर है कि केमिकल के साथ अटैच कर दिया जीन को, केमिकल सेल के अंदर गया, केमिकल न्यूट्रलाइज कर दिया सेल ने, जीन बच गया, उसको अटैच कर लिया. सो केमिकल मीडिएटेड. तो इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो केमिकल है, और ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, दिस इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. कि सर ये भी ट्रांसफर कर रहा है, पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है. माइक्रो इंजेक्शंस का इस्तेमाल, कोई डिटेल नहीं, बस यार टर्म पूछेगा यूपीएससी तुमसे पूछेगा तो. और एक सबसे ज्यादा जो एडवांस्ड मेथड अब आ रहा है, जो 2026 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, नैनो गोल्ड की मैजिक बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं. ये सब मैं नैनोटेक में पढ़ाऊंगा, बस यहां रेफरेंस लिखेंगे. यस, प्लीज मेंशन वेक्टर्स यूज्ड इन आरडीएनएटी, वेक्टर्स यूज्ड इन आरडीएनएटी. चारों लिखो पहले तो.
Vectors used in rDNAT. Plasmid, rDNAT. Plasmids, bacteriophages. Plasmid, bacteriophages. ब्रैकेट में लिख लेना वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, दोबारा लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो. वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया. Bacterial artificial chromosomes, yeast artificial chromosomes. Bacterial artificial chromosomes, BAC. Yeast artificial chromosomes, YAC. Yeast artificial chromosomes. और इसके नीचे advanced vectorless transfer methods. Advanced vectorless transfer methods. Advanced vectorless transfer methods. जीन गन, माइक्रो इंजेक्शंस लिखा हुआ है सामने. जीन गन, माइक्रो इंजेक्शंस, केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर लाइक पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल. सामने लिखा हुआ है सब. केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर लाइक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. एंड मैजिक बुलेट्स ऑफ नैनोगोल्ड. मैजिक बुलेट्स ऑफ नैनोगोल्ड. तो नैनोटेक में इसको वापस आएगा, नैनोटेक में. करेक्ट. विल डिस्कस अबाउट दिस इन नैनो टेक्नोलॉजी.